passport is not a blank check. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. DSP اور DPO اور SP انویسٹیگیشن تمام کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور ان کو چارج شیٹ بھی کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. آج کے G4 غریدہ کے خاص پروگرام میں میں یہاں حاضر ہوئی ہوں قصور کی تحصیل چونیا، جہاں پہ قیامت خیز ظلم ہوا ہے، بلکہ اس ظلم کو اگر قیامت بھی کہا جائے تو قیامت بھی شرما جائے گی. قصور کے علاقوں میں یہ ظلم ہونا بچوں کے ساتھ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. زینب کا جب واقعہ ہوا تھا، یہ میرے ساتھ زینب کے والد صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، لیکن اس واقعے نے معاشرے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، حکمرانوں کو جھنجھوڑ دیا تھا، اس ملک کے نظام کو جھنجھوڑ دیا تھا. ہم سب نے سمجھ لیا تھا کہ شاید اب سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گا اور اب یہ جو ریاست ہے یہ واقعی ماں کے جیسے ہو جائے گی. حکمران جن کے اپنے بچے بھی ہیں وہ واقعی اس دھرتی کے، اس وطن کے ایک ایک بچے کے جان اور والدین کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم سب غلط تھے، کیونکہ زینب کے واقعے کے بعد، زینب کے واقعے پر بھی ہم قصور میں آئے تھے اور زینب کے والدین سے وہی بات کر رہے تھے جو آج ہم ان 4 والدین کے ساتھ بات کریں گے. وہ 4 معصوم مظلوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ امیجن کریں 8 سال کا، 9 سال کا، 12 سال کے بچے، ان کے ساتھ اتنا ظلم. جانور بھی اتنا ظلم نہیں کرتے، جانور بھی کسی زندہ بچے کو نہیں کھاتے، کسی زندہ بچے کے ساتھ درندگی نہیں کرتے، حیوان بھی ایسا نہیں کرتے، تو پھر انسان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور سسٹم کہاں ہے؟ ریاست کہاں ہے؟ حکمران کہاں ہیں؟ کیوں یہ واقعات مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ میں اس وقت چونیا میں موجود ہوں، چونیا کی مقامی مسجد میں موجود ہوں. میرے ساتھ تمام والدین موجود ہیں. فیضان کے والد صاحب ہیں، عمران کے والد ہیں، علی حسنین کے والد ہیں، سلمان کے والد موجود ہیں. میرا بیٹا پہلے ساریاں تو 3 تاریخ تو 28 روزے تو گم ہویا. میں رپورٹ درج کرائی آن کے 4 تاریخ نو. پولیس نے رپورٹ درج کر لئی سی؟ اسی ویلے کر لئی سی؟ نہیں کیتی تے پھر جاندے سا SH کول. جی وہ SH کہندا ہی تو دبایا ہے، بچہ تیرا دبایا نال گیا چلا ہے. تو جڑے افسر کو لگا جاندے سا وہ کہندا سی بھی تو دبایا ہے تاں گیا ہے گھروں، تو درباراں تے لے جاندا ہی کدی آپ نے مارا ہے اور بچہ بھاگ گیا ہے. ہاں جی، تو دبایا مارا ہے تاں بھاگ گیا ہے. میں انہوں بار ہی کہندا رہا میرا بیٹا میتھوں بغیر نہیں رہ سکتا، میرا بیٹا کسی نے چک لیا. میرے نال تعاون کرتے بیچارے، انہاں دا تا نہ جاندے، انہاں دے تا یہ ماں چلو میرے نال تا ظلم ہو گیا سی. جے پولیس سانوں ساتھ دیندی تے انہاں بیچاریاں دے تا نہ 3 رولدے. اسی آنے بھی شرعام انہوں قتل کیا جائے، اتنے کتے چھڈے جان. ساڈے جویں بچے رولے نے، سانوں کپڑے ہی ملے نے، سانوں اور کوئی شے نہیں ملی، نہ ساڈے کول کوئی شے ملدی. چلو پتراں دی ڈھیریاں تا بنا لیندے، سانوں کوئی نہ ہڈیاں ملیاں، بس کپڑے ملے نے وہ بھی نہیں ملے. وہ لے گئے نے جی لاہور لگائے نے جی آون گے تو پھر ملن گے. ہمیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا. اگر وہ نہیں بھی دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور انصاف دے گا. وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، ان سے گزارش ہے کہ یہ آپ نظام ٹھیک کریں. ہماری تو سب سے یہی اپیل ہے کہ مجرم کو پکڑ کے شرعام پھانسی دی جائے. چوک میں ان کے مجرم کو تو پھانسی جیل میں دی گئی تھی، کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، بس خبروں پہ ہے پھانسی دی گئی ہے. اس کو پکڑ کے ہم کہتے ہیں شرعام پھانسی دی جائے، بلکہ پورے محلے پورے علاقے میں اعلان کیا جائے کہ آپ لوگ آ کے دیکھیں ظلم کرنے والے کو کیسے سزا مل رہی ہے، عوام عبرت حاصل کریں. ہم چاہتے ہیں کہ مجرم کو شرعام سنسار کیا جائے، شرعام سنسار کیا جائے، ایسی بھی سزا دی جائے کہ آئندہ بار کوئی ایسا کام نہ کرے. ہم بہت غریب تھے نا، اسی لیے تو ہماری کسی نے سنی نہیں 2 مہینے،
अगर हम भी अमीर होते तो ये पुलिस आगे पीछे होती। आपका बेटा 2 महीने हाँ से जी, 2 लापता महीने से था, गायब आप है। पुलिस के पास गए जी, थे, हम किसी पुलिस ने नहीं- क्या कहा? यही कहते थे कि तुम भी बाहर जाके ढूंढो, तुम भी ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे हैं, मेलों पे जाओ, रिश्तेदारों पे जाओ। और उसके बाद मैं खुद फ्लैक्सें लगाता रहा। साहिवाल पूरे ज़िले में हमने फ्लैक्सें छुपा कर खुद लगाई, हमें किसी ने नहीं पूछा, किसी ने हमसे कोई तवज्जो नहीं की। गरीब आदमी का कोई नहीं सहारा होता, अल्लाह ही होता आपके है। बाकी बच्चे हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे बाकी भी हैं। आप समझते हैं अब वो महफूज हैं? जी, मैं जब तक घर में बैठा रहूँगा, कोई काम ना करूँगा उनके ऊपर, तब तक तो वो महफूज हैं। तो ज़ाहिर है अगर मैंने बच्चों को खिलाना भी है, काम भी करना है, तो उसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकता, महफूज नहीं है। अब ये वालिदैन की बात सुने, वो कहते हैं कि हम बच्चों के ऊपर घर में पहरा दें या हम बच्चों को बाहर जाके मजदूरी करें और उनका पेट पालें। इंसाफ मिलना चाहिए और दरिंदे को सामने लिया के देना, साढ़े सामने माँ प्यो दे सानू दिखावन, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਨਿਚੋੜੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੀਕਾ ਕਢਾਈਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਚੀਕਾ ਨਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੀ ਹੋਵੰਦੀ। तमाम वालिद साहिबान की बात तो आपने सुनी, कुछ वालिदाओं से भी बात करेंगे इन मुतासरा मजलूम मासूम बच्चों की। और हमने MPAs MNAs नुमाइंदगान की तो जिम्मेदारी की बात की, पुलिस के किरदार पे बार बार सवाल उठ रहा है। जो GIT बनी हुई है उनके सरबरा DPO कसूर जाहिद मरवत साहब से भी बात करेंगे। इस वक्त मैं इन बदनसीब वालिदैन के साथ मौजूद हूँ जिनके बच्चों पे जुल्म हुआ है। मेरे साथ फैज़ान की वालिदा और सलमान की वालिदा मौजूद हैं। बाकी 2 बच्चों की वालिदाएं, एक बच्चे का तो मुझे बताया गया है कि उनकी वालिदा नहीं है और दूसरे बच्चे के वालिदा की तबीयत इंतहाई ख़राब है। अपने बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है, इन वालिदैन की हालत भी देखी नहीं जाती, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत अजियत में हैं ये अपनी किस्मत को रोएं, हुक्मरानों को रोएं, किसको पीटें, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएं। तो वही कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी दुख जितनी तकलीफ़ की घड़ी में ये हैं, इनको इंसाफ मिल रहा है, इनका मुतालबा क्या है, इनके बच्चों की रूहों को इंसाफ कैसे मिलेगा, इस मुआशरे के कसूर के चूनिया के बच्चे जो बाकी बच्चे हैं वो कैसे महफूज रह सकें। ये फैज़ान के जो बाकी बहन भाई हैं, ये छोटा भाई है फैज़ान का, ये है, उनकी बहनें मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है फैज़ान की वालिदा? मेरा नाम अब्दुस्सलाम है। अब्दुस्सलाम, मुतमईन हैं आप? अब तक वज़ीर आला भी कल यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, GIT भी बन गई है, आप मुतमईन हैं बच्चे के इंसाफ का जो इस वक्त तरीका चल रहा है उसको इंसाफ दिलाने का? मुतमिन तो ही नाश्ता मुतमिन ना सानू मुतमिन कर भी गया जिन्ना च इंसाफ मिलिया ना, असी किस तरह मुतमिन हो जाए, ਅਸੀਂ किस तरह यकीन करिए साढ़े को इंसाफ आवेगा तो असं मुतमिन होवांगे ना। हाँ ठीक है, साढ़े पीछे तावन तो कर रहे हैं, रोज़ आते ने, रोजाना एक जा रहा एक आ रहा एक जा रहा, हौसले दिलासे सह देंगे ने, असी 8 पार दे जा 16 पार दे जा, अज जा पलक असी तुहानू मुजरम लभ देने, तुहानू कातली लभ देने, लेकिन मिलेगा तो फिर ही ना। सानू तो उम्मीद ही कोई नहीं हैगी, जे मिले तो एक बच्चा गुम होया वो भी मिल सकता सी, दूसरी बार भी एक ना केयर मिलना, तीसरी मिले, चौथा बच्चा गुम हो गया है। सानू तो इस गल असी बेमेद आ, पिछले बच्चों का नहीं इन्ना पता, हुकूमत ने नहीं ख्याल किया, ध्यान किया है, चलो होन ही लगे ने, असी आने होन ही सानू दे दे सही कातल लभ के, सानू साडा तो जेने कातल सानू मिल जाए, साडे बच्चे का इंसाफ मिल जाए, असी होर कुछ नहीं होना चाहते, असी इंसाफ चाहते हैं। बच्चे तो साडे इन्होंने जालमां ने जुल्म कर दिता, ज्यादतियां कर दित्तियां ने, साडे कोल बर्दाश्त नहीं हो रहा, साडे बच्चे जिहड़े ने देखे नहीं जा रहे, असी अपनी अखां नाल देखे नहीं दे, सानू किसी ने दिखाए नहीं देना कि बच्चे देखने वाले ही नहीं दे है। हाँ, असी तो यही कहने हुण सानू जुल्म मिल जाए, जिन्हें मेरे बच्चे ते जुल्म किया, ज्यादती की है, सानू इंसाफ चाहिए, वो बंदा चाहिए है। तुसी कोशिश हुकूमत करे, वजीर आजम करे, अल्लाह करे, क्यों नहीं हो सकती? मैं नहीं मानती, कोशिश करने ते बच्चा मिलता है, क्यों नहीं जरा बच्चे नू कतल करने वाला है क्यों नहीं मिल रहा है? असी मावा दूसरियां भी रो रो के परेशान हो के बह गए, मैं भी अज इन्ने दिन हो गए ने, क्यों नहीं सानू केयर करके बच्चे का कातली दे रहा है? असी इंसाफ चाहते हैं, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। आप उन वालिदैन की तकलीफ़ का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं जिनके बच्चों के साथ एक तो इतना जुल्म हुआ हो और फिर बच्चे का जिस्म भी उनको ना मिले, बच्चे की लाश तक उनको ना मिले। ये सलमान की वालिदा हैं मेरे पास,
सलमान की वालिदा, एक तो आपका नाम बताइए और आपका दुख तो कोई भी नहीं, कोई समझ ही नहीं सकता और कोई आपको सब्र करने का भी नहीं कह सकता। अजरा। अजरा बीबी। हाँ जी। अजरा बीबी, आपको कैसे इंसाफ मिलेगा? आपको तो अपने बच्चे के कपड़े मिले हैं सिर्फ। मैं तो कपड़े नहीं जी वेखे। आपने कपड़े भी नहीं देखे? वेखे हाँ, ਉਹਦੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾ ਆਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਸਐਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕੋਈ पता नहीं लगा। बेटा 10 अगस्त को हाँ लापता जी, हुआ हाँ था। लापता हूँ। आज इन्होंने पता चल गया है बच्चा उस कुएं च पिया है। अब मेरे बच्चे तो पहला 3-4 बच्चे के उत्थे पै ने, लाशां मिल गई ने, हड्डियां मिल गई ने। हुण इन्होंने पता चल गया उत्थे बच्चा पिया, पहला क्यों नहीं इन्होंने पता चलिया? विचों उत्तों आए ने वजीरे आजम, जाकू पुलिस वाले, जहाँ लाहौर से आए ने कल। इन्हें बहुत बड़े कपड़े लैके गए ने, उत्थों बहुत बड़ियां जुत्तियां लैके गए ने, बहुत बड़ियां हड्डियां देख के गए ने। अज देख गए ने, ना पहला क्यों नहीं देखा? इन्हें पहला इन्ने बच्चे गुम ने, पहला जो देखना जेडे बच्चे मगरों जुल्म होए ने, ज्यादतियां होईयां ने, वो तो ना होंदियां आईयां। अस फिर इस वजह तो करके कहने आ, पहले बच्चे गुम होए, उन्हां दियां मावां ने जा जा के बार बार दस्या साडे बच्चे गुम हो गए ने, गुम हो गए। किसे हुकूमत ने ख्याल ही नहीं कीता, किसे हुकूमत ने ख्याल नहीं कीता। सलमान की मामा बोला नहीं पता कि कराया सी बच्चे का है। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ, ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਜੇ ਨਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। रोते बिलखते वालिदैन को इंसाफ कौन दिलाएगा? वज़ीर आला पंजाब क्या इंसाफ दिलाएंगे? उस्मान बुज़दार, इमरान वज़ीर खान। आला से जे पूछदा सानू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਗੜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਲ ਸਜਾ। ये इतने वाकयात कसूर में, चूड़ियां में इतने वाकयात होते हैं। अजरा बीबी, आप समझती हैं कि आपके बाकी बच्चे महफूज हैं? फैज़ान की वालिदा, आपके ये बाकी बच्चे आपके साथ बैठे हैं, आप इनको महफूज समझती हैं? महफूज समझ कि नहीं, महसूस के साथ समझ के ऐसा ही है कि बच्चे कौन ने था जो मेरा बच्चा दरवाजे च गुम हो गया है, इस उत्ते किवें महफूज करिए? ऐसा ही है बच्चा ने स्कूल छड्ड के व्यावी गा लैके व्यावी दा, बच्चा दे नाल चीज़ लैण भी जाईदा लैके व्यावी दा। हुण हर टाइम दा जाया नहीं जांदा सी, दरवाजे ते कोल खड़ी आ, मैं बच्चे वेंदी पई, बच्चे जांदे पे, मैं उत्ते पौड़ी चढ़दी गई, बच्चे गायब हो गए ने। 5-10 मिनट बाद मैं तलाश करनी शुरू कर दित्ती हैगी, 15 मिनटां बाद पुलिस आ गई हैगी है, उस 5 मिनट होर ठहर के कसूर दी आ गई, लौज लाहौर दी आ गई। फिर क्यों नहीं मेरा बच्चा मिलिया है? महल्ले दे विच ही मेरा बच्चा गुम हो गया है, महल्ले दे विच ही मेरा बच्चा खत्म हो गया है। अज 5-6 दिन हो गए मेरे बच्चे का कोई तलाश मिल नहीं रहा, कोई कातल मिल नहीं रहा। 16 को लापता हुआ है, लेकिन सलमान 10 अगस्त को, हाँ जी, ना सानू महीने से ऊपर। आप अपने बाकी बच्चों को महफूज समझती हैं? महफूज ਤਾਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਘਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਬਾ ਸਕੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉਹ पेट पालेगा। आपकी वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म इमरान खान से मैं चाहती हूँ कि आप वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करें, इंसाफ की अपील करें। उनके दिल में गरीबों का बड़ा दर्द है, वो खुद भी बच्चों वाले हैं। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਦਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਤਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਤਲੀ ਦਿਓ ਚਾਹੀਏਗਾ। मेरी बेटी जड़ी मेरे बेटे तो बिना तो रह नहीं सकती सी, फजान तो मिट नहीं रहती सी हैगी, फजान तो मेरा बेटी जड़ी सी एक मंजी ते लेटते सी, खाना भी एक जैसा खाते सी, बैठे भी एक जैसे। मेरी बेटी आज 3-4 दिन हो गए बाई दी फजान दी तलाश, बाई दे गम दे विच ना चल रही ना फिर रही ना कुछ खा रही ना कुछ पै रही। जे खाना देते कहते मम्मा फजान के बिना नहीं लग रहा, फजान खाता सी तो बहना खाती सी, जे फजान नहीं खाता सी तो बहना नहीं खाती सी। मेरी बेटी आज 3-4 दिन हो गया, खाना भी नहीं खा रही, पानी भी नहीं पी रही, जब तक आनी फजान ना आया मैंने नहीं खाना हैगा, जब तक फजान का कातली ना मिला मैंने नहीं खाना हैगा। फजान चले गए ना मैं भी अपनी जान ख़त्म कर दूंगी हैगी। मैं सानू इंसाफ चाहिए है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए है। बेटी कह रही फजान मिलेगा तो फिर सुकून होना, नहीं तो नहीं होना, मैं फिर खाना खाऊंगी नहीं तो नहीं खाऊंगी। ये साथ बैठे हैं फैज़ान के बाकी बहन भाई भी, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ये, और इनकी आंखों में देखें अजीब सा खौफ नज़र आता है, अजीब सी बेयकीनी नज़र आती है। आपको इंसाफ की अब किससे उम्मीद है? आप मासूम बच्चे हैं ये, और इनकी आंखों में देखें अजीब सा खौफ नज़र आता है, अजीब सी बेयकीनी नज़र आती है। आपको इंसाफ की अब किससे उम्मीद है? आप सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस से अपील करेंगी? ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆਵੇਗਾ ਅਸ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਤਲੀ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲੀ ਲੱਭਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਮਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅੰਨਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। आप अपील करेंगी सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस से, क्योंकि वो जो मासूम ज़ैनब का वाक़या हुआ था वो भी फिर जिस तरह उनका इंसाफ मिला है सानू भी उस तरह इंसाफ मिलना चाहिए हैगा। जिस तरह ज़ैनब ਦਾ इंसाफ ਆਮ ਸ਼ਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਜਿਵੇਂ कातिल पकड़ा जाए और फांसी दी जाए, सरेआम फांसी दी ਹਾਂ जाए। ਸरेਆਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਕੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਲਮ। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DPO कसूर जाहिद नवाज़ मरवत साहब। ये वही शख्सियत हैं, इंतहाई काबिल पुलिस ऑफिसर हैं, और वही शख्सियत हैं कि जिन्होंने ज़ैनब कत्ल केस को भी सॉल्व किया था और उसके मुजरिम इमरान को उन्होंने पकड़ा था और फिर वो अपने अंजाम तक भी पहुँचा। अब जाहिद नवाज़ मरवत साहब पे एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच एक तो वक्त देने के लिए। ज़ाहिर है आपकी मसरूफियात इस केस के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। आपने ज़ैनब का मर्डर केस भी सॉल्व किया, पूरी कौम के जो इस वक्त जज्बात थे गुस्से के, उसको आपने कहीं ना कहीं सुकून पहुँचाया। लेकिन इस वक्त पूरी कौम, बल्कि कौम से बढ़ के जो वालिदैन हैं वो शदीद कर्ब में हैं, तकलीफ़ में हैं। उनसे बात करके आई हूँ मैं, गरीब मज़दूर बेचारे दिहाड़ीदार तबके के लोग हैं, तो कब तक सॉल्व कर सकेंगे आप ये वाला केस? जी थैंक यू वेरी मच मैम। बात यह है आपने जो रेफरेंस दी, ज़ैनब भी हमारी बेटी थी, ये भी हमारे बेटे हैं, इनके घर भी मैं विज़िट कर चुका हूँ जी। गुर्बत की एक हद है वहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। और ये जिस तरह वहाँ गुर्बत की एक हद है, इस तरह यहाँ जुल्म की एक हद है। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मैं समझता हूँ कि बैसियत इंसान, बैसियत मुसलमान, बैसियत पुलिस अफसर, इस तरह क्रुएल्टी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, जो मैंने ज़ैनब के वक़्वे में देखी और फिर यहाँ पे देखी। ज़ैनब के वक़्वे और इसके वक़्वे में फ़र्क तो डेफिनेटली ये है कि पहले ये कोई सिमिलर इंसिडेंट लगता है, कोई सिमिलर लोगों की या गैंग की कार्रवाई लगती है? सिमिलैरिटी भी है, डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। सिमिलैरिटीज़ ये है कि वहाँ बच्चियाँ टॉर्चर हो रही थी, यहाँ बच्चों के साथ हो रही हैं, लेकिन अब इसलिए वो गैंग नहीं है। दैट वाज अ सोलो फ्लाइट बाय इमरान। ठीक। यहाँ पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें टॉर्चर्स की वजह से बहुत ज़्यादा निशान है, बहुत डैमेज है, वो बहुत डैमेज है, जिससे लगता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर तो पोस्टमार्टम सिंपल होता, इन्वेस्टिगेशन किसी और लाइन पे जाती, यहाँ पे जो रप्चर है वो इन्वेस्टिगेशन को कोई और लाइन दे रहे हैं, ठीक। लिहाजा ये डिससिमिलैरिटी है, ठीक। यहाँ पे हमने वॉइड किया हुआ है। अभी भी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ
टीमों की सूरत में इंडिविजुअल्स को भी हिट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हिट कर रहे हैं जो इस कमाश के लोग हो सकते हैं। सो फ़र्क है। ये कोई इंडिविजुअल की कार्रवाई है या गैंग की? क्योंकि इस वक्त जो इलाके के लोग हैं और जो एक परसेप्शन है सर वो ये है कि ये कोई गैंग है, कोई रैकेट है जो बच्चों को इस तरह एक्सप्लॉइट करता है या उनकी वीडियोस बनवाता है। इस पॉसिबिलिटी पे क्या काम कर रहे हैं? देखिए जो ये इम्प्रेशन है ये गलत भी है और गलत नहीं भी है। वजह मैं एक्सप्लेन करूँगा। वजह ये है कि आपकी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में जगह जगह पे ये पॉर्न इंडस्ट्रीज़ की जो मूवीज़ फिल्में हैं 50 रुपया तो मोबाइल में अपलोड हो जाती हैं। सो ये कहना कि इन लोगों का जो इम्प्रेशन है, जो फेयर है दिलों में कि कहीं ये मुनज़्ज़म गिरोह है, मुनज़्ज़म गिरोह इसको भी तो मैं गिरोह का हिस्सा ही समझता हूँ कि जो इस तरह से बच्चों के ज़हनों को पल्यूट करते हैं। लेकिन क्राइम के हवाले से यहाँ पे बात करना कि एक मुनज़्ज़म गिरोह है, ऐसी कोई बात नहीं। इट्स एन इंडिविजुअल एक्ट। कोई प्रोफेशनल गिरोह समझते हैं कि जो तो एक मैं बताता हूँ एक शायद मसूद साहब का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में चला था, उन्होंने एक डार्क वेब का नाम दिया इनको। वो इस तरह की कोई बात नहीं है। वहाँ पे भी जो ज़ैनब केस में मैंने इंटरोगेट किया था, वहाँ पे मैंने देखा था, वहाँ पे भी मोर देन 3000 लोगों को हमने इंटरोगेट किया था। ऐसी कोई बात नहीं, कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं। लेकिन क्राइम कमिट करना एक से ज़्यादा बंदों ने कमिट किया है यहाँ पे या एक बंदे ने कमिट किया, इट्स अ क्वेश्चन टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रप्चर है वो बहुत वाइल्ड इंजरी है। दिस शोज़ कि हमने इन्वेस्टिगेशन को वन लाइन पे नहीं रखना, हमने इसको डिफरेंट। सर आप चूंकि उस जीआईटी को भी हेड कर रहे हैं तो कितना जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वालिदैन हम सब कि मुजरिम पकड़ा जाएगा, अपने अंजाम तक पहुंचेगा? रब ने चाहा, हमारी तरफ से एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है। ह्यूमन इंटेलिजेंस पे भी बेस्ड ऑपरेशंस हम कर रहे हैं। टेक्निकली जितनी भी पॉसिबल हैं चीज़ें, आप जानते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी आपने की होगी, वो सारी यहाँ पे हो रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इन अ डे और 2 मे बी 3 days ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। रीज़न एक हम जनरलाइज्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, एक टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। टारगेटेड ऑपरेशन में हम सस्पेक्ट को कलेक्ट करते हैं, बाकायदा इनके इंटरोगेशन रिपोर्ट कराते हैं। अभी तक हमारे पास बड़े हाई पोटेंशियल्स के सस्पेक्ट्स मौजूद हैं एंड वी आर वेटिंग कि वो हमारे जैसे डीएनए मैचिंग हो जाए रिजल्ट्स पे तो इंशाल्लाह ये केस सॉल्व हो जाएगा अल्लाह के फजल से। वी होप फॉर दैट एज वेल। सर पुलिस के रवैये से बहुत शिकायत है। फैज़ान तो अभी चंद दिन पहले मंडे को वो लापता हुआ था, लेकिन जो बाकी 3 बच्चे हैं वो 1.5 महीने से 2 महीने से लापता है और एक बच्चा हमसा जो कि 17-18 ईयर्स का है वो तो 3 महीने से लापता है। उसकी एफआईआर अभी 3 दिन पहले काटी है। तो ये पुलिस का रवैया, वालिदैन कहते हैं हम पुलिस के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी बच्चा बस बाहर के ही निकल गया होगा, वापस आ जाएगा, एफआईआर तक नहीं काटते। कहते हैं कि जी वालिदैन ने मारा होगा तो बच्चा भाग गया होगा डर के। हमजा के बारे में कहा जा रहा है कि जी आपका बच्चा तो 17-18 साल का है, पॉसिबल नहीं है उसके साथ ये वाला केस, ये तो छोटे बच्चे। मतलब ये पुलिस का रवैया पुलिस का जब हम स्टूडेंट्स थे तब भी सुनते थे, अभी हम पुलिस अफसर बन गए, इसी यही हमारा टास्क है, यही हमारा चैलेंज है। मैं बता रहा हूँ, इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि 3 days से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, उससे पहले भी मैं रहा हूँ, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में रहा हूँ। ये एफआईआर जिन लोगों ने नहीं की उसके खिलाफ आपने देखा कि इंस्पेक्टर जनरल ने बहुत बड़ा एक्शन लिया, उसको चार्जशीट भी किया, उसकी बाकायदा इंक्वायरीज भी होल्ड हो गई, इवन के एसपी इन्वेस्टिगेशन तक की भी इंक्वायरीज होल्ड हो गई। तो जहाँ तक इंस्पेक्टर जनरल का ऑर्डर्स है वो तो बिल्कुल क्लियर कट ऑर्डर्स है। जिन्होंने गफलत की है, ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट में ऐसे गफलत ना हो तो शायद हम 21st सेंचुरी के जो यूरोप के साथ बराबर होते। गफलत ही है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, पुलिस कौन है मैम? पुलिस है कौन? मैं कौन हूँ? इस सोसाइटी का मेंबर हूँ। ये हमारे जो कांस्टेबल्स आप देख रहे हैं इसी कसूर के रहने वाले हैं, यही ऑफिसर्स इसी पंजाब के रहने वाले हैं, यही पंजाब इसी सोसाइटी से हो रही है। बात यह है कि एक कंटिन्यूस एफर्ट्स है और पुलिसिंग 1 वे ट्रैफिक तो है नहीं, पुलिसिंग 2 वे ट्रैफिक है। जिस तरह सोसाइटी हमें फीडबैक देती है हम उसी तरह से पुलिसिंग करते हैं। लेकिन जहाँ पे मिसिंग लिंक है एटीट्यूड का, रवैये का, उस पे हमें काम करने की ज़रूरत है और इस पे हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इस तरह से है कि 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पे
जब मैं यहाँ पे आया तो चीज़ें चैलेंजेस डिफरेंट थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था। आप अभी थाने को देख लें, वहाँ पे डिफरेंट था, लोगों के जज्बात की मैं खुद फील कर सकता हूँ कि शॉक में, पैनिक थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, अब डिफरेंट है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी तो एक अच्छी बात है कि विद इन 3 days यही पुलिस इस स्टेज पे पहुँच गई है कि लॉ एंड ऑर्डर, आपको ऑर्डर मिलेगा, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि वाकई पुलिस काम कर रही। आपने खुद देखा कि किस तरह हो रही। मैं अभी आपको फील्ड में लेकर जा सकता हूँ कि जहाँ पे आपके यही पुलिस अफसरान, जवान मुख्तलिफ बेस बदल के, हमारे लेडी कांस्टेबल्स मुख्तलिफ घरों में बैठी हैं, इंटरव्यूज़ कर रही हैं, इवन सराइज़ में जा रही हैं, हमारे होटल्स में जा रही हैं, इस शहर के मुख्तलिफ एरियाज। सो इट्स ऑल कि हम किस तरह से उनको पुश करते हैं। एक टास्क मिला है, अल्लाह करे ये इसमें कामयाब हो जाए। दूसरा, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ट्वीट किया था कि हम ओवर हालिंग करते हैं। आज भी आईजी साहब का ये था कि हम कसूर जो इस जगह, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने स्पेसिफिकली कसूर का जिक्र किया। इस टोटल पुलिसिंग स्ट्रक्चर का, पुलिस थानों का ओवर हालिंग की ज़रूरत है और वो आईजी साहब ने ऑर्डर किए। हम अच्छे अच्छे अफसर लगाएंगे। जो भी ऐसे अफसर हैं, कल एक भाई ने सवाल किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस इनकी सरपरस्ती कर रही, तो उसको जवाब भी मेरा यही था कि वो बड़ा बदबख्त आदमी होगा कि जो ऐसे गिनाह जुर्म की सरपरस्ती करे। क्या उनके घर में माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं, उनके यहाँ बच्चे नहीं हैं? तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है हो, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको डिग आउट करना, उस बंदे को, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना, उनको इन्हीं केसेस में चलान किया जाएगा। सो हमें काम करने की मैम ज़रूरत है, रवैये को बेहतर बनाने की, और हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और ज़ाहिरी बात है कि इसमें टाइम लगता भी है। आप देखिए फ्रंट डेस्क भी बने हैं, आईटी में बहुत ज़्यादा हम आगे गए। अभी आईटी एक्सपर्ट बैठे थे, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो इंशाल्लाह फ़र्क तो काफ़ी आएगा। एक और बात भी आप देखें ना कि ये जो केस में FIR नहीं हुआ, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो अननोटिस चले जाते हैं कि जहाँ पे पुलिस की अचीवमेंट होती है। बहुत सारे ऐसे माएँ हैं जिनको इसी पुलिस ने बच्चों से मिलवाया है। बहुत सारे आज भी आप देखेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड में 7 वाला थाना है पुलिस स्टेशन, जहाँ पे 2 बच्चे घर से निकले थे। ठीक है, उसको मिलवाने वाला भी तो एक सब इंस्पेक्टर था। अब मैम, मैं आपको एक बात बताऊँ, फैमिली यूनिट का क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? उनको सही मैसेज देना नहीं बनता, सही इन्फॉर्मेशन देना बनता है कि नहीं बनता है? सो इट्स अ कलेक्टिव स्ट्रगल, एक कंप्लीट पैकेज है। ये इंश्योर करेंगे तो ये चेंज आएगा। चूनिया में जो दिल खराश और दिल को दहला देने वाला वाक़या हुआ है, क़यामत खेज़, क़यामत भी इसके नज़दीक कम लगती है। इस पे पूरा प्रोग्राम आपने देखा, वालिदैन से बात करवाई, इलाके के लोगों से हमने आपकी बात करवाई, हुकूमत के नुमाइंदों से बात करवाई, पुलिस के साथ बात करवाई। अब प्रोग्राम के आखिर में हम ज़रा रिपोर्टर्स के साथ बात करेंगे जो इस इलाके को जानते हैं, इस वाक़ये को जानते हैं। आमिर तकवी साहब हैं, चूनिया से रिपोर्टर हैं, आज टीवी के। मोहम्मद इमरान साहब कसूर से रिपोर्टर हैं, तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सब मामलात का बैकग्राउंड क्या है और क्यों होते हैं बार बार ये वाक़यात। आमिर तकवी, क्यों हो रहे हैं बार बार ये वाक़यात? इंडिविजुअल केसेस हैं या कोई गैंग है, कोई रैकेट है? सर मैडम, ये तो बात की बात है ना कि ये इंडिविजुअल है या कोई गैंग है। ये केस सरजद हो रहे हैं सिर्फ पुलिस की नाअहली की वजह से। अच्छा जी बिल्कुल, इसका नो डाउट पुलिस का यहाँ पे जो बच्चों के वालिदैन हैं उनके साथ जो रवैया था इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। लोग जो आके यहाँ तज़लील करते हैं, बहुत ऐसा इंसल्ट करते हैं। जा कहते हैं, कभी कहते हैं आप चले जाएं दादा दरबार चले जाएं, कभी कहते हैं आप मेले में ढूंढें, कभी कहते हैं आप दारुल अमान में चले जाएं। इतने छोटे छोटे बच्चे दादा दरबार या दारुल अमान मिल सकते हैं? आपको मैं बताऊं, इन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। एक बच्चे की वालदा के पास पैसे नहीं थे, उसने अपनी कान की बालियाँ बेच के 2000 रुपये की फ्लेक्सें छुपाई हैं, वो भी उन्होंने पूरे इलाके में खुद जाके लगवाई। इन्होंने किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। असल में ये दास्तान जो है, ये दिल खराश दास्तान जो है, ये 3 जून से शुरू हो गई थी, जब डाना टाउन का जो इमरान नामी बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल है वो गुम हुआ है और उसके FIR नहीं दर्ज की, रबर दर्ज की है और कहे जी वो बड़ा है, आपने मारा होगा। रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद फिर वाक़या हुआ 10 अगस्त को मोहल्ला गौसियाबाद से एक बच्चा हुआ है, इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर इसी दौरान 1 हफ्ते के बाद 17 अगस्त को उसी मोहल्ले से एक और बच्चा गायब होता है।
जिसको आज टीवी रिपोर्ट करता है। अच्छा, तो ये कसूर और चूनिया में ही क्यों हो रहे हैं ज़्यादा वाक़यात? यहाँ कोई गैंग्स हैं, कोई रैकेट्स हैं, क्या है मसला, क्या है? अभी इसका कुछ कहना कबलस शायद मुनासिब ना हो। मेरा तो ख्याल है कि एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जो ये वारदातें कर रहा है। और कसूर का वाक़या देख लें, इतने ज़्यादा जो हुए, बंदा बीच में फिरता रहे। और मेरा ख्याल है कि ये ज़ैनब केस की तरह चूनिया का भी केस इसी तरह के मेरा ख्याल है कि होगा, निकलेगा। ये इमरान साहब आप बताइए कि ये जो वाक़यात इसी इलाके में, कसूर में, इसी डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, क्यों यहीं पर ज़्यादा क्यों हैं? जी गिरिदा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूँगा। 2015 में जब सैनहा वाला वाक़या पेश आया वो भी पुलिस की वजह से है। ये तो एक कंफर्म बात है, ये तल हकीकत है कि जितने भी वाक़े उनके पीछे पुलिस की नाअहली ज़रूर मौजूद है, कहीं ना कहीं, बल्कि हर जगह मौजूद है। सैनहा वाला वाक़या पे वहाँ भी FIR दर्ज नहीं की गई, लेकिन वो एक महदूद था, स्कैंडल बना, स्कैंडल के बाद वो उनके गिरफ्तार हुए। उसके बाद आगे आ जाए कसूर में बच्चियों के साथ जो जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, बर्बरियत हुई, वो उनके वालदा नहीं जानते हैं और कोई नहीं जानता उनके वालदान के साथ क्या बीती। उसके बाद ज़ैनब का केस है, वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा। हमने समझ लिया कि शायद यहाँ पे फुल स्टॉप, इमरान को सजा मिल गई है, यहाँ पे ये सिलसिला ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ वर्क हुआ कसूर के अंदर, कुछ सेफ सिटी बना, प्रोजेक्ट बना, उसके लिए से CCTV कैमरे भी लग गए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो वहाँ पे कुछ सेफ सिटी कैमरे की वजह से प्रोजेक्ट सेफ बन गया। वहाँ भी ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है, ये उन्होंने वहाँ से जंक्शन तब्दील किया और वो चूनिया में आ गए। इनमें ममासलत क्या है, वहाँ भी बच्ची गायब होती थी, उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती थी, उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन बाद वो कचरे के ढेर पर भी बच्चे जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, मिल जाती थी बच्ची, और उसके बाद लाश मिलती है। अगर मैं बताऊँ, अगर ये आम आदमी कोई इस तरह की कोशिश करता है, जुल्म बर्बियत करता है, तो मेरा ख्याल उसमें इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो ये काम करे, बच्ची को उठा के कचरे में काम कर रहा है। ये इनके पीछे कुछ ताकत है, कोई मुनज़्ज़म ग्रोह है जो वहाँ से शिफ्ट होगा, यहाँ पे चूनी पे आएगा। और मेरा ख्याल है कि ये अभी रुकेगा नहीं, अल्लाह करे ये रुक जाए। मेरा नहीं ख्याल कि रुकेगा, क्योंकि जो इतनी दिलेरी से काम जो कर रहा है, और वो रियासत को, और वो ये जो हमारी जो चैलेंज कर रहा है, जो वो बॉडी फेंक देता है, वो चैलेंज कर रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान साहब, आमिर तकवी साहब, बताया है इन्होंने हमें कि इस इलाके में मसला क्या है। अब ये चैलेंज है उस्मान बुज़दार साहब के लिए सबसे बड़ा, ये चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए कि पंजाब में साबित करके दिखाएं कि एक काबिल और इंतहाई अहल हुकूमत और उनके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, वरना हम मुसलसल चेक एंड बैलेंस हुकूमत पे रखेंगे। बहुत शुक्रिया, आई सी यू नेक्स्ट वीक।